that some only the blood relations are being mentioned and the persons who are in the blood relationship only, those are mentioned. But it is namely as blood relationship, as because two words are made in an altogether fashion, and those two words are the blood मीन्स हम सभी जानते हैं कि खून जो बोलते हैं हिंदी में या बंगाली में बोलते हैं क्योंकि बंगाली फिल्म में मैंने बात है तो उसको बोलते हैं रक्तो एंड देन द अदर वर्ड इज रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप को हिंदी या बंगाली में हम समझ ही सकते हैं कि तो यही तो मामला है कि अभी इसको पकड़ लेना है कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में जैसे कि क्वेश्चन दिया जा रहा है शायद पकड़ लो कि मैन is being directed by a woman to say that in this picture the man is your father's grandson. Then it may be asked that what is the relationship between the man and the person who is present in the picture. Then we have to find out who is the person present in the picture. And in this dimension, we can say that it is the sun. And because we have already mentioned that the lady or the woman was saying to the man that the picture of the person is of the grandson of your father. That means it's directly related to the person and it's a good example of the blood related relationship. And in some case, like one woman is directing one man by saying that the picture is of a person who is not your relative, but who is your sister's husband. Then you may be asked that what is the relationship between the man and the person who is in the picture? As because you know that I have already mentioned the man and the man's sister's husband. That means we have to say it's like the brother-in-law. So we have to go in this way. But those questions can be somehow much critical when we are unable to understand the exact relationship. And this exactness can't be find out if the understanding of the the reasoning can't be much in our mind. So we have to make it like in this way. We have to say that the man is me. And if we can say that the man is me, then we can easily find out who is in the picture or who is being directed in this kind of reasoning. As because we know that logical reasoning does mean that there is a logic. And if we can find out the logic, then the logical reasoning can be Jaru. for any of us. So if you have any kind of question, please let me know. हाँ परेशा जी कुछ आपका अगर क्वेश्चन है तो बोल सकते हो ब्लड रिलेशन से छोड़ के भी अगर कुछ लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो हम्म, किसी को अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है जो लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड हो वो लोग पूछ सकते हैं किसको कुछ क्वेश्चन है क्या लॉजिकल रीजनिंग में कुछ डाउट कुछ क्वेरी कुछ प्रॉब्लम कुछ भी विदाउट एनी हेजिटेशन यू मे आस्क
লজিক্যাল রিজনিং থেকে তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে? সুপর্ণা, ঈশিতা, কল্যাণ, তোমাদের কোনো প্রশ্ন স্যার থাকলে জিজ্ঞেস করো, নাহলে আমি ক্লাসটা শেষ করবো। স্যার বলো। স্যার একবার ওই ইন্ডাকটিভ আর ডিডাকটিভটা যদি বুঝিয়ে দেন। ইন্ডাকটিভ মেথড, তো হ্যাঁ ইন্ডাকটিভ আর ডিডাকটিভ। ইন্ডাকটিভ মেথড মানে হলো তুমি কোনো কিছুকে যুক্ত করছো, আর ডিডাকটিভ মানে হলো কোনো কিছু থেকে কোনো কিছুকে আলাদা করছো। যেমন তুমি ইন্ডাকটিভের ভেতরে এরকম এক্সাম্পল হিসেবে পেতে পারো, ক্লাসের ভেতরে ছেলেরা গন্ডগোল করছে, তার মানে তোমার হুম হয়তো এক দুজন ছেলে গন্ডগোল করছে না, কিন্তু তুমি সবাইকে নিয়ে হুম একসাথে বলছো যে ক্লাসের মধ্যে ছেলেরা গন্ডগোল করছে। এই ধরনের যে সেন্টেন্স গুলি থাকবে তারা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ। আবার এই ইন্ডাকটিভ অনেক হুম সময় ডিডাকটিভ হিসাবে দেখা যেতে পারে। যেমন ধরো আমি যেরকম বললাম যে ক্লাসের ছেলেরা গন্ডগোল করছে, এখন ধরো একটা ক্লাসের ছেলের নাম হচ্ছে রবিন। আমি যদি বলি যে ক্লাসের ছেলেরা গন্ডগোল করছে কিন্তু রবিন গন্ডগোল করছে না, তাহলে এই যে সেন্টেন্সটা তৈরি হলো, এই সেন্টেন্সটাকে আমরা বলবো ডিডাকটিভ। এখন আমরা যে, আর রবিনকে আমরা আলাদা করছি। হ্যাঁ কি বলছো বুঝতে পারলাম না। মানে কারণ আমরা রবিনকে আলাদা করছি সবার থেকে। হ্যাঁ মানে ওকে আমরা ডিডাক্ট করে নিয়ে আসছি, আলাদা করে নিয়ে আসছি, এক্সেপশন বলছি, হ্যাঁ দেন এটা হচ্ছে ডিডাকটিভ। এখন ধরো আমরা যখন এই ধরনের একটা সেন্টেন্সকে বানাই, তখন সেন্টেন্সটা বানানোর একটা কনক্লুশন হুম আমাদের কাছে আসে, কিন্তু এই কনক্লুশনে আসার আগে আরো কিছু অংশ থাকে। এই হুম কনক্লুশন আমি কি বেসিসে আনছি, কিভাবে আনছি, এটা একটা জায়গা থাকে। যেমন আমি যদি ক্লাসের সামনে যাই তবেই যে আমি হুম গন্ডগোলটা বুঝতে পারবো। এবার ক্লাস ঘরটা কত নম্বর বা হুম কোন ক্লাসের ঘর সেটা আমি জানতে পারছি। এই যে জায়গাগুলো থাকছে এদেরকে বলা হুম হচ্ছে ক্রাইসিস। এইরকম সাধারণত যে হুম আমাদের পরীক্ষায় যে কোশ্চেন গুলি দেওয়া হয় তার মধ্যে দু ধরনের আমরা প্রেমাইসিস পেতে পারি। হুম যদিও প্রেমাইসিস কিন্তু দুইয়ের বেশি হতেই পারে, কোনো অসুবিধা নেই যদি দুইয়ের বেশি প্রেমাইসিস দেওয়া হয়। ধরো তোমাকে আজকে যদি নিউ প্যাটার্ন বলে এনটিএ নেট একটা এমন কোশ্চেন বানিয়ে দেয় যেখানে তোমার দুইয়ের বেশি সংখ্যায় হুম রয়েছে তোমার প্রেমাইসিস, হুম তাহলেও কিন্তু তোমাকে ওই সেন্টেন্সের অর্থ থেকে বুঝতে হবে যে এটা কি ধরনের সেন্টেন্স বা কি ধরনের আর্গুমেন্ট হচ্ছে। যেমন ইন্ডাকটিভ আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে তোমার যদি এই ক্ষেত্রটা হতো, তাহলে তোমাকে এরকম থাকতে পারতো প্রিমাইসে যে ক্লাস 7 এর ছেলেরা ওই ঘরটায় বসে, হুম ওই ঘরটা থেকে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, জোরে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এই দুটো হচ্ছে প্রিমাইসে। তাহলে তুমি কনক্লুশন করতে পারো যে ক্লাস 7 এর ছেলেরা ওই ঘরে বসে গন্ডগোল করছে। ঠিক একইভাবে ডিডাকটিভের জন্য তুমি বলতে পারো যে ক্লাস 7 এর ছেলেরা ওই ঘরে বসে গন্ডগোল করছে, কিন্তু তারপরে আরো একটা অংশ জুড়ে দিয়ে যে রবিন নামের ছেলেরা সে গন্ডগোল করছে না। তাহলে এইভাবে হচ্ছে প্রিমাইসেসের সঙ্গে তার যে কনক্লুশন তার একটা সম্পর্ক থাকে। তো তোমার কোনো বুঝতে অসুবিধা হলে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো, আর কিছু যদি থাকে তোমার লজিক্যাল বেসিসে। স্যার মানে অ্যাবডাকটিভটা কি তাহলে? অ্যাবজেক্টিভ হচ্ছে যে ধরো তুমি, অ্যাবডাকটিভ। অ্যাবজেক্টিভ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে তোমাকে ধরো এমন একটা সেন্টেন্স দেওয়া হলো, যে সেন্টেন্সটার ভেতরে তুমি ইন্ডাকটিভ বা ডিডাকটিভের জায়গায় আসতে পারছো না। যেমন ধরো, আকাশে মেঘ করেছে, এই যে আকাশে মেঘ করেছে এই জায়গাটার মধ্যে বা পরের জন্য আমি একটু হিন্দিতে বলছি, সেটা হচ্ছে যে the sky is now cloudy। अगर the sky is now cloudy, अगर ऐसे कुछ बोला जा रहा है तो उससे हमको ये समझ आता है कि बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका कुछ मतलब হুম एंड कंक्लूसिवली हम लोगों को पता नहीं चला कि हो भी सकता है, नहीं भी हो। হুম जैसे कि रॉबिन नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, क्लियर कट आ रहा है। तो इसमें कुछ दोहरा नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कि अगर क्रिएट कर रहा है, नहीं तो नहीं क्रिएट कर रहा है, बस इतना ही, और कुछ नहीं। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस हो जाए कि मैंने स्काई में क्लाउड, तो इससे हमको दो सेंटेंस का पता चलता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे जो हो, तो उसको हम जो आप वर्ड यूज किए वो बोल के पुकारते हैं। क्यों? उसको पुकारने का कारण है
कि हम लोगों के मन में थोड़ा डाउट रहता है कि स्काई में क्लाउड होने से तो बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ और कुछ नहीं भी हो सकता। है कि क्लाउड होने के बाद ही बारिश हो गया, और कुछ कुछ जगह दिखा गया कि हम्म, क्लाउड हुआ भी था लेकिन कुछ बारिश नहीं हुआ। ये जो सिचुएशन है इसके लिए हम लोग बोलते हैं एब्जेक्टिव। तो ऐसे ही करके हम लोग को इंडक्टिव डिडक्टिव इतना ऐसे ज्यादातर एग्जाम में दिया जाता है कि इंडक्टिव या डिडक्टिव को आप ढूंढ लो। और जो मैंने दिया था एब्जेक्टिव को, ये था कि और एक कोई अगर न्यू पैटर्न में कुछ क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मेनली जो है ना ये थोड़ा बहुत न्यू पैटर्न के लिए थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है। तो अगर कुछ न्यू पैटर्न का आ जाए तो हम लोग कैसे उसको देख सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एनटीपीसी सर्वे में जो पूछेगा कि उस दिन बारिश हुआ था, जो स्काई में कुछ क्लाउड था, आज भी क्लाउड नहीं, तो आज बारिश हो सकता है। ये जो कंक्लूजन है एक कौन सा टाइप का कंक्लूजन है, और जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें रहेगा इंडक्टिव, डिडक्टिव, बोथ एंड नॉन। वहां पे एब्जेक्टिव नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जा रहा है तो हम लोगों को सोच लेना है कि इंडक्टिव के लिए बोल रहा है। फिर बारिश हुआ था आज, और मैंने स्काई में क्लाउड है तो आज भी बारिश हो सकते हैं, तो ऐसा अगर हो जाता है तो उसका मतलब है कि वो इंडक्टिव दे रहे हैं कोई। जैसे कि परेश जी ने कल एक क्वेश्चन पूछे थे, ये वहाँ पे एक क्वेश्चन में था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं या जो अभी जो बारे में एक क्वेश्चन था जहाँ से एक दो एक्सेप्शन थे, लेकिन जो थे वो भी ऑल टुगेदर में आ गए हैं। तो एक तो ऑल टुगेदर में आ रहे हैं, इसको लिए इसको हम लोग डिडक्टिव में नहीं ले सकते, क्योंकि उसका भी एक टुगेदर फॉर्मेशन हो गया, कोई एक्सेप्शन नहीं रहा। जैसे कि एक क्लास है, हम्म, एक क्लास में अगर हम लोग लड़का और लड़की दो पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं वो लड़की, तब जाके डिडक्टिव बन रहा है। लेकिन हम लोग अगर बोल देते हैं कि लड़की लोग, जो लड़का लोग है उससे थोड़ा हट कर बैठो या दूसरे कोई चेयर में जाकर बैठो, तब आ जाएगा इंडक्टिव में। एग्जेक्टिव में और नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस में आ रहा है लड़की लोग, द ऑल टुगेदर फंक्शन, द ऑल टुगेदर, इस ऑल टुगेदरनेस will always indicate about the inductive। अगर एक्सेप्शन के बारे में ना रहे तो वो सब समय जो मैंने डायरेक्ट कहा वो होगा इंडक्टिव, क्योंकि लड़की लोग मतलब ही तो है इंडक्टिव, एक टोटलिटी बोल रहा है ना। तो उसमें से हम लोगों को सोचना है कहाँ पे एक्सेप्शन के बारे में बोला जा रहा है। जैसे कि हम लोग का अगर ऐसे रहे कि लड़की लोग वहां पे बैठो जाकर, दो लड़की इधर आ जाओ, अभी देखो लड़की लोग से दो को एक्सेप्शनल बना करके उधर से लेके इधर आने का एक बात हो रहा है। तो ये जो बात हो रहा है इसमें डिडक्टिव हो गया। अगर ना हो तब तक इंडक्टिव ही था। जब जाके ये बोल रहे हैं कि दो लड़की लड़की लोगों से उठकर आओ और लड़के लोग के पास से मैं जाके बैठू, तब एक क्वेश्चन बन जाएगा डिडक्टिव में, क्योंकि वो जो दो लड़की है वो एक्सेप्शनल लाइफ के इधर बैठ रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोगों को सोच लेना है कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, और अगर कुछ एक्सेप्शनल के बारे में ना बोलकर ऑल टुगेदर के बारे में बोल रहे हैं तो सभी समय आप इंडक्टिव ही लगाओ, ऐसा है। तो किसी का कुछ अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, और मैंने कुछ भी लॉजिकल रीजनिंग से कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। सर मैंने एक कंफ्यूजन रखा था कल। हाँ वो क्वेश्चन थोड़ा पूछो तो आप, वो तो मैंने पूरा हाँ, जिस आप पूछो एक बार। उसमें मेरे हिसाब से जो जिसमें कह रहा है कि जो सभी सभी पीसफुल पीस के सर्च में होते हैं, और ये टेररिस्ट का है जो टेररिस्ट पीस के मतलब के अगेंस्ट में होते हैं, तो डिडक्टिव क्यों नहीं हुआ वो एक ऑप्शन? बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ तो हम जो बोला अभी, जो मैंने अभी बोला आपको कि लड़का लोग है और जी जी लड़की लोग है, लड़की लोग जो भी जी हो जी वो जाकर उधर जाकर बैठ जाओ। तो ये जो मामला हुआ, ये आपको लग सकता है कि लड़का लोग और लड़की लोग दोनों को लेके ही तो क्लास चल रहा था। तब अगर किसी को जाकर बोल रहा है कि लड़की लोग जो है तो वो जाके उधर बैठ जाओ, तो इसमें तो डिडक्टिव का सेंस आ रहा है।
क्योंकि डिफिनेशन बन रहा है या घटाने का एक बात हो रहा है कि क्लास के जो टोटलिटी में जो था उसमें कुछ उठाकर उधर से जाने के लिए बोल रहा है, तो ये तो डिडक्टिव होगा, जी। लेकिन एग्जैक्टिव नहीं होगा, क्योंकि लड़की लोग का मामला चल रहा है, एक टुगेदर फैशन का बात आ रहा है। अगर ऐसा होता कि वो लोग बोलते कि दो लड़की जाकर उधर बैठ जाओ, तब डिडक्टिव बन जाता, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है लड़की लोग जाओ, तो लड़की लोग का जो भी टोटलिटी है वो जाओ, तो जो टोटलिटी का बात बोलेगा ना उसमें तो इंडक्टिव आएगा। मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर बता रहा है तो मतलब वो डिडक्टिव है, जैसे कि सेल्फ वाला जो उसमें था। समझने के लिए कोशिश करना, तभी समय ना इस सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है ये समझने के लिए कोशिश करो। कहीं कहीं पे बोला भी जा सकता है चीखू, हम लोग बंगाली में बोलते हैं चीखू, और आप लोग बोलोगे थोड़ा, तो थोड़ा सा ये दे दो, और हम लोग बोलेंगे चीखूटा इधर दिया जाओ तो एवं हम लोग बोले, माने ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये जो मामला है ये डिडक्टिव का मामला है, यहाँ पे कुछ मैंने नंबर को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो है कि टोटलिटी में नहीं दे रहा है, सब दे दो, बस सब दे दो बोलती ना, नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कुछ दो, बस कुछ एक शब्द ऐसा जो शब्द होगा उसके लिए हम लोग सभी समय डिडक्टिव का यूज तो करते हैं। जैसे कि आपका जो क्वेश्चन था वहां पे ऐसा नहीं बोला गया है कि सम टेररिस्ट कम हियर और केम हियर एंड दे डू सम मिसक्रिएंट एक्टिविटी, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। आपको जो बोला जा रहा है वो है टेररिस्ट, दैट मींस ऑल ऑफ द टेररिस्ट, all of the terrorists are making some kind of miscreant activity to break down the peace, ऐसा कुछ सेंटेंस था। तो ये जो है इसमें ऐसा नहीं पा सकोगे आप कि कुछ कुछ टेररिस्ट जाकर ऐसे कुछ काम कर रहा है या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है, टेररिस्ट है। अगर बोल देते कि सम टेररिस्ट तब जाके डिडक्टिव बन सकता था, लेकिन यहाँ पे सम टेररिस्ट नहीं बोला जा रहा है, इधर है टेररिस्ट मीन्स ऑल द टेररिस्ट, तो ऑल जब आ रहा है इसका मतलब तब जाके इंडक्टिव बन रहा है, तो इसी कारण वो सेंटेंस बन जा रहा है इंडक्टिव में, समझे गुरु? अच्छा, इसमें एक जो सेल्फ वाला कह रहा था जो इस सेल्फ में इतना है, इस सेल्फ में इतना है, नंबर है तो उधर देखो एक नंबर दिया गया है 30 to 40 ऐसे जी जी तो जी जी इसका मतलब ये हो रहा है कि ऑल टुगेदर नहीं आ रहा है, वहाँ पे नंबरिंग हो रहा है और नंबर से डिवीजन हो रहा है। अरे अगर पकड़ लो कि हम लोग बोल रहे हैं इधर 10 स्टूडेंट्स हैं, हम लोग उसको नंबरिंग ऐसे कर रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स से हम लोग 5 स्टूडेंट्स को उधर जाने के लिए बोल दिए, या मैं जैसे बोल सकता हूँ अभी कि मेरे पास अभी 16 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 16 स्टूडेंट्स से आज 4 स्टूडेंट्स मेरे पास कंप्लेंट से आए हैं, तो ये जो मामला है ये डिडक्टिव का है। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलता कि स्टूडेंट्स हैव कम टू टेक माय क्लास, तभी जाके इंडक्टिव बन जाता, तभी डिडक्टिव नहीं रहता, समझे? मैंने अगर मैं ऐसे बोलूं कि टोटल आउट ऑफ द 16 स्टूडेंट्स ओनली 4 स्टूडेंट्स हैव कम इन द क्लास फॉर लर्निंग एंड रेस्ट ऑल हैव थॉट दैट दे डोंट हैव एनी नीड टू लर्न एनीमोर, so it's a kind of deductive. But if I say that students have come to me for learning, then it's an inductive sentence. समझे? समझ आया क्या नहीं? अगर नहीं आया तो बोलो एक बार। समझ आया है या नहीं आया है परेश जी? ये सर जो आपने इसमें बताया है, जो आपने दिया था स्लाइड, उस स्लाइड में आपने उसको डिफाइन किया है जो थ्योरीज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन व्हाई इट अकर्ड, ये डिडक्टिव है। हाँ और इंडक्टिव है जिसमें
data is collected on the possible reason why it occurs and trends in the data are examined. जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, जैसे कि स्टूडेंट हैव टेकन एडमिशन फॉर लर्निंग, ये जो सेंटेंस बनेगा ये हो जाएगा इसका। लेकिन अगर ऐसा होता कि डेफिनेशन मैंने मैं बोल सकता हूँ कि 4 स्टूडेंट्स आर मच सीरियस देन द रेस्ट 12, इसका मतलब हो रहा है कि ये जो 4 स्टूडेंट मेरे पास आए हैं वो लोग लॉजिकल रीजनिंग लेके इतने सीरियस हैं कि इन लोगों का भी तो थोड़ा बहुत काम है, जैसे कि इशिता अभी पीएचडी का थीसिस सबमिट कर रहे हैं, कल्याण का भी कुछ काम है, सुपर्णा भी एक होम मेकर है, उसके साथ पीएचडी भी कर रही है, तो सभी के पास कुछ काम है और आप भी ऑफिस में हैं। लेकिन आप 4 लोगों में इतना सीरियसनेस और इतना केयरफुलनेस है कि सभी कुछ लेके भी आप लोग मेरा क्लास लेने के लिए आ गए हो, तो यू आर समथिंग स्पेशल and this speciality is targeting towards the definition that these 4 persons are much serious than the rest 12। और अगर ऐसे बोलता कि स्टूडेंट ले लिए हैं और जो एडमिशन फी है वो दे दिए हैं, सभी कुछ कर दिए हैं, तो अगर ऐसा सेंटेंस हो जाता तो डेफिनेशन अलग से नहीं आता। मैं नहीं बोल पाता था कि हाँ एक 4 स्टूडेंट ज्यादा सीरियस है और एक 12 स्टूडेंट उतना सीरियस नहीं हो सकते, ये मैं नहीं बोल सकता था। लेकिन अभी जाके मैं ये बोल सकता हूँ और जब हो रहा है तो उससे डेफिनेशन निकल के आ रहा है, तो यही बोला गया है उधर। Okay, sir. আচ্ছা বাকিদের কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করো, করলাম তুমি তো আজকে প্রথম দিন আসলে বোধ হয়, তোমার কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করো। আর ইসিটা তুমিও ব্লাড রিলেশন নিয়ে আমার কোশ্চেন আছে। বলো বলো স্যার টাইমও শেষ হয়ে যাচ্ছে, বলো। বলছি স্যার ব্লাড নেটওয়ার্ক খুব রিলেশন ডিস্টার্ব হচ্ছে আমার। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? পরে বললেন বলো, একটা দুটো তাহলে আমি বুঝতে পারবো না, একটু সামনে অর্থ শুনে নিয়ে অর্থ শুনছি। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ বলো বলো তাড়াতাড়ি বলো। হ্যাঁ বলছি ব্লাড রিলেশনের একটা তো প্রসেস আছে, মানে কোথা থেকে আমরা শুরু করব? প্রসেসটা হচ্ছে তোমাকে যখনই বলছে যে অমুক মহিলা বা অমুক পুরুষ অমুক লোককে বলছে, এই যে অমুক লোককে বলার জায়গাটা সেখানে তুমি নিজেকে বসিয়ে দেবে, তাহলে দেখবে জিনিসটা সহজে তোমার সামনে চলে আসবে। কারণ আমরা অন্যকে নিয়ে যতটা সচেতন থাকি নিজের জন্য কিন্তু সচেতনতা অনেকটা বেশি লাগে। তো এই ধরনের যখন তোমাকে কোনো রিজনিং এ দেবে যেখানে অন্য লোককে বলছে, অন্য লোক যাচ্ছে, অন্য লোক করছে, এই ধরনের যখন ব্যাপার থাকবে, যেমন যখন ডিরেক্ট তখন এটা কাজে লাগবে। সবসময় নিজেকে যেমন একটা কোশ্চেন আমি বলছি, বলো। একটা কোশ্চেন আমি বলছি, হ্যাঁ পয়েন্টিং টু এ ফটোগ্রাফ এ লেডি টেলস প্রমোদ। হ্যাঁ এখানে তাহলে আমি কিভাবে ধরবো? অন করে নিও, কারণ আমি না দেখতে গেলে তুমি কতটা কি শুনছি সেটা আমি বুঝতে পারবো না। বলো সেটা, বলো বলো শুনছি বলো। হ্যাঁ এখানে আছে পয়েন্টিং টু এ ফটোগ্রাফ এ লেডি টেলস প্রমোদ, তাহলে এটা মানে প্রথমে কাকে দিয়ে শুরু প্রমোদের করব? জায়গাটায় তোমাকে বসাবে, আচ্ছা তাহলে ধরে নেবে যে একজন ভদ্রমহিলা তোমাকে কোনো একটা কথা বলছেন কারোর সম্বন্ধে, দেখবে এই জিনিসটা তোমার কাছে অনেক ইজি হয়ে যাবে। তুমি দু একটা কোশ্চেন, আমি 5টা কোশ্চেন দিয়েছিলাম, সেই 5টা কোশ্চেনের ভেতরে দুই একটা কোশ্চেন নিজেকে একটু বসিয়ে দেখবে, দেখবে জিনিসটা অনেক ইজিলি তুমি বুঝতে পারছো। ওকে হ্যাঁ করলাম, তুমি কিছু বলছিলে ভাই বলো। হ্যাঁ স্যার আমি বলছি যে আমার নেটওয়ার্ক খুব ডিস্টার্ব হচ্ছে। আচ্ছা আমার হাফ ক্লাসটা আমার মানে ভালো লাগলো, ক্লাস ক্লাস কেটে হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। ধন্যবাদ স্যার। কোনো রকম কিছু বলছি যে স্যার হ্যাঁ বলছি যে ওই ব্লাড রিলেশনটা একটু ভালো করে বলে দিলে ওইটা একটু সমস্যা বেশি হয়। ব্লাড রিলেশনের জন্য যেটা আমি বললাম, আমি একটু হিন্দিতেই বলছি কারণ ফরেস্টে উনি মানে নন বেঙ্গলে তো উনি ঠিক বাংলাটা অতটা বুঝবেন না আমার ধারণা। হ্যাঁ হিন্দিতে বলুন অসুবিধা নেই। হ্যাঁ बाकी तो मने है कि हिंदी तो बोधहय बुझते অসুবিধা অতটা হবে না। तो मैं जो बोलने के लिए कोशिश कर रहा था वो है कि कभी भी कोई सेंटेंस दिया जाए आपके पास जहाँ पे कुछ ब्लड रिलेशन के बारे में बोला जा रहा है, तो वहाँ पे जाकर आपको जो काम करना है उसमें आप पहले एक सेंटेंस में देख सकते हो कि कहीं पे जाके एक लड़का या एक लड़की
और एक कोई लड़का या लड़की को कुछ बोल रहे हैं, तो जिनके पास कुछ बोला जा रहा है, जैसे कि एक लड़की कल्याण को बोले कि वो जो पिक्चर में लड़का है वो आपके दीदी के या सिस्टर के लड़का है, तो इसके साथ आपका क्या रिलेशन है? तो मुझे अगर एक क्वेश्चन दिया जाए तो मैं जो करूंगा, वो जो कोल्लम लिखा हुआ है, कोल्लम के जो जगह है उधर मैं खुद को बैठा लूंगा। अगर मैं खुद को उधर ले जा रहा हूँ तो उसमें जो आ रहा है क्वेश्चन में, वो आ रहा है कि मेरा जो दीदी है या जो सिस्टर है, उसका जो लड़का है वो मेरे साथ कौन सा रिलेशन में है। तो देखो एकदम इजीली आ जाएगा कि ये नेटिव है हाँ या भाग में है, हम लोग जो बंगाली में बोलते हैं भाग में, तो ভাগ নেই বাবা। এটা কিন্তু हाँ আমরা খুব সহজে বুঝতে পারছি। আর এটা যদি আমার কাছে हाँ ना देकर ऐसे हम लोग घूमते रहते हैं कि कल्याण है, अच्छा कल्याण से ऐसे बोला जाए तो कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो हम लोग सोचते रहते हैं अगर, तो हम लोगों को हाल कोई कुछ अच्छे तरह से नहीं निकल सकते हम लोगों के पास। और हम लोग जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि लॉजिकल रीज़निंग का ना एक माने टर्म है ये कि उसमें हम लोगों को घुमा के ऐसे कुछ बोला दिया जाता है कि वहाँ पे ही हम लोगों का आंसर तो दिया जाता है, और अगर हम लोग लॉजिक ना लगा सके तो इतना टफ हो जाएगा कि हम लोग कुछ उसके बारे में सोच भी नहीं सकेंगे और उसका कुछ आंसर भी नहीं दे सकेंगे। लेकिन हम लोग अगर उसका लॉजिक पकड़ लेते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी, तो सभी समय हाँ ऐसे कोशिश करना कि लॉजिक क्या है, इसमें क्या बोला जा रहा है, ये पकड़ने के लिए थोड़ा कोशिश करना और कभी कॉन्फ्यूज मत होना। क्योंकि उन लोगों का काम नहीं है आपको कॉन्फ्यूज कर देना, और आपका काम है कॉन्फ्यूज नहीं होना। कॉन्फ्यूज जितना होगा लॉजिकल रीजनिंग में उतना गलत होगा। तो ऐसा है। और मैं कल या अच्छा परसों तक एक डिरेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन दे दूंगा, तो वो भी आप लोग देख लेना कि डायरेक्शन में हम लोग कैसे करके कुछ पकड़ सकते हैं। शायद परीक्षा या जो भी कुछ मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो आप लोग, तो आप लोगों को पता है डायरेक्शन के बारे में। तो मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ कि आप लोगों को कितना पता है क्या नहीं है, कौन सा कॉन्फ्यूज हो रहे हो क्या नहीं। तो इसके लिए मैं कल परसों तक एक पेपर दे दूंगा आप लोगों को, उसको सॉल्यूशन आप लोग कर लेना। और उसके ऊपर और एक मैं क्लास रख लूंगा, शायद संडे या मंडे को, तो डिडक्शन भी हो जाएगा। अच्छा और कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के पास? अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बस ये पूछ सकते हो, इशिका पूछ सकते हो, सुपर्णा व कल्याण जिज्ञेस করতে পারো, কোনো রকম কিছু থাকলে। আচ্ছা কি কোনো রকম কিছু জিজ্ঞাসার কোয়ারি কিছু কারোর কাছে? तो ऐसी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर किसी भी चीज से पूछना है क्या, या लॉजिकल ये रीजनिंग वगैरह से? लॉजिकल रीजनिंग का मैं थोड़ा क्लास किया, लॉजिकल रीजनिंग से कुछ अगर है आपका पास क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, या अगर किसी का और कुछ क्वेश्चन ना हो तब जाके आप दूसरे कोई सब्जेक्ट या टॉपिक से भी पूछ सकते हो। তোমাদের কাছে কি লজিক্যাল রিজনিং এর কোনো প্রশ্ন আছে কিছু কারোর কাছে? যদি না থাকে তাহলে পরবর্তী হয়তো অন্য একটা চ্যাপ্টার থেকে যদি জিজ্ঞেস করতে চাইছেন তাহলে সেটা আমি নিতে পারি। मुझे तो लग रहा है कि उन लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है, पर इसलिए आप वीडियो ऑन कीजिए और क्वेश्चन पूछिए, आपका जो भी चैप्टर से जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना है। ऐसे टाइम जा रहा है, थोड़ा जल्दी पूछ लीजिए, 7 मिनट है और। ये सर फॉलेसी फॉलेसी पे थोड़ा सा एक बार और सुनना था। फॉलेसी तो आप लोगों को पढ़ना है, पॉलिसी में बहुत सारे मैंने दिया है, तो उतना मैं कैसे एक एक करके अभी बोलूँ। उसमें जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ अगर आपको डाउट लगे या कुछ समझ रहा है तो वो उठा के ठीक। क्योंकि जो मैंने लिस्ट दिया था पैरासिस का, तो वहाँ पे मुझे जो अभी तक याद है तो 30 से मोर देन 30 था, तो मोर देन 30 को मैं अभी तक करके कैसे बोलूँ। अब कुछ अगर डाउट है किसी को लेकर तो आप वो वाला पूछो।
है क्या आपके पास जिसमें आपको डाउट लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कुछ? तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो। अगर नहीं हो तो मैं अभी क्लास पे एंड कर रहा हूँ। आप लोग जब भी चाहो, मेरे फ़ोन नंबर तो आप लोगों के पास है ही, तो एक बार फ़ोन लगा लेना मेरे पास, मैं उसका थोड़ा सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक है। तो इसके साथ मैं अभी क्लास पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके सर। थैंक